तो आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं और आई रिक्वेस्ट अनीता कुमार आंटी प्लीज आएं और सत्संग की शुरुआत करें. Okay, so I came to Guruji with I came actually very reluctantly. I was a reluctant believer, so I came half-hearted to Guruji many years ago. And as I bowed to Guruji with my health conditions, I just knew when I first glanced at him that I'm in the right place, that I have arrived home. That was the feeling that I literally got. And he just said to Roz Aaya Kar or Roz Langar Kita Kar. These were his words. And that first day he just said, Hun tu kar ja, matlab chai prashad di aur bhej diya langar ki bina. So, but the journey started there and then I knew that I have found someone extraordinary. Of course, there's no words to describe him except divinity himself. So I had no idea whatsoever, but I just knew that now I have hope because I was in a very hopeless situation in my life where I was suffering from skin cancer, life-threatening asthma, and eczema, and a hole in the heart. So I had many issues that were really crippling my life. And the quality of life, of course, had deteriorated. I was on constant steroids. At the age of 30, due to the overdose of steroids, I got cataract in both my eyes and I almost went blind. So I think it was incredible how Guruji called me at the right time, just when I needed him. And before I met Guruji, I had gone to many gurus and babas and pandits, and of course in vain, because they had all said, you give us 2100 or 1100, kuch na kuch wo mangte the, and no solution was ever found. So it was completely a futile attempt of seeking some kind of relief from my health issues. So I started coming every day, and I remember just feeling this sense of peace, even though there was so much physical suffering where I couldn't open my mouth without it cracking. And my eyes were half shut because there was, the skin was obviously very sore, very tender all over the face and body, that I could barely open my eyes. But the point was that the inner peace which Guruji gives us, no matter how severe the external suffering is, I found that peace. I felt that peace. And I felt his love. I think most importantly, I felt that love and acceptance emanating from him. वो बहुत बड़ी चीज थी कि मैं जहाँ जाती थी कोई ना कोई conditionally कुछ मांगता था, पर गुरुजी never asked for anything. He just said कि तू रोज आया कर, बस he wanted our devotion. कहते मैं ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਵ ਦੇਖਣਾ, मैं देखना ਤੁਹਾਡਾ मन किस तरह, मन होए चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा, मन होए चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा. So he was just interested in our भाव, हमारा भाव जो है, हमारी भावना जो है, जिस मन से हम आते थे, simplicity से, with a spiritual streak in us, and that's all he wanted. So my journey continued, and देखते देखते मेरा अस्थमा अटैक, गुरुजी के पास बैठी थी, and मेरा अस्थमा अटैक शुरू हो गया, and I said गुरुजी मुझे चाहिए मेरा steroid injections. He said तू के ठीक होना है, ते ए लंगर पूरा कर, अयो तेरे steroid injections है. So as you can imagine, I was very distressed. I said ये steroid injections नहीं है, गुरुजी आलू गोभी दाल है, ये रोटी है, ये steroids नहीं है. He said ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜੂਤੀ ਜਦੋਂ ਉਤਾਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਪਸਨ ਬਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਇਪਸਨ ਬਰਸ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਲੈਟ ਅਸ ਟਰਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਦੌੜਦੇ ਨੇ. ਐਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ खत्म हो जाती है. So, but I knew in my heart that I'm in the right place, but Guruji maybe doesn't love me because I can't breathe right now. I'm choking to death, and Guruji is asking me to eat this langar.
But I ate, and I of course questioned in my heart, why is he making me such heavy food when I can barely breathe? And the only solution to my issues was steroid injections. Every changing season in a Shlok hospital. And बस लंगर किया, मत्था टेका, तो मैंने कहा मुझे यहाँ कभी वापस नहीं आना. गुरुजी did not understand. And then telepathically गुरुजी ने एकदम जवाब दिया कि मतलब verbally दिया, मैंने telepathically बोला, पर verbally गुरुजी ने एकदम बोला कि कल आ जाए, जा तेरा अस्थमा ठीक किता, हूं तू ठीक होगी, कल्याण किता, जा ऐश कर. He always said जा ऐश कर. And that was his blessings to really bless us with absolute happiness, जो कभी महसूस नहीं होता, कभी experience नहीं होता until we are really connected to a true Mahapurush. Like Guruji said, Rab kitho milna hai tonu. You know, it's not an easy search. Every human being asks for this divinity in their lives, but only the blessed few actually get that, grace that comes on you. So in my head, when about him, I just said, I'm not coming here again. He said, Kal aa jaye, asthma thi kita. So I went home, and I never got asthma ever again, asthma attack ever again. And I was never hospitalized for asthma after that one langar. So this is the power of our langar. Guruji used to say, "मैं तोनु bless करन आया, but तोनु blessing लेनी नहीं आंदी," which actually meant कि हम अपनी blessing आधी कर देते हैं, या हम दिल से नहीं लेते हैं. Like nowadays, especially since Guruji is not in the physical form, it's very easy for people to negotiate on the langar that they get. कि मुझे आधा दे दो, या कम दे दो. But the point is, Guruji has simplified religion. Part of that whole, his way of healing us is, of course, through the Gurbani. Guru and Gurbani, there's no difference. Gurbani is Guruji's teachings, and that is healing us on the soul level. That is the bhajan, as he said, is the food for the soul, and the bhojan is the food for the body and for all our ailments, physical ailments. So both are equally important, and Guruji has really simplified religion by giving us satsangs. Satsangs are a very practical platform where we sit, we absorb and assimilate the Shabad, Gurbani, and whether we understand it or not, that is irrelevant. One day I just said, Guruji reprimanded me. He said, "Tu sundi nahi, Shabad nahi sundi." So I said, Guruji, मुझे समझ नहीं आती है. तेनू समझनू किसने किया है? सिर्फ सुनन नू किया है. तो तू सुनिया कर, तुहाडी दवाई है. So I used to try and understand it, but my mind used to waver, and he said he's basically simplified the whole way of connecting to divinity. He said, "Tuade andar de Guru nu jagan aaya." God is within you. So man saaf rakhya karo. And several months later, I realized that my skin was still as painful as ever. I was still afflicted with skin cancer, but somehow, because of his love that was much beyond my suffering, his love, his acceptance of me, non-judgmental, I didn't mind suffering anymore. It was so strange. The suffering also was redefined, because I felt मुझे जो मेरी soul को ज़रूरत थी, वो मुझे मिल गया है. Now I don't care how much I really suffer on the physical level. But Guruji, of course, is all-knowing. He's omnipresent and omniscient, and he's antaryami. He knows what's going in our heart. And of course, if we're there with him, he doesn't want us to suffer. So he will give us everything that we need in the right time, space, and sequence. So he just calls me one day from the Sangat, and he says, "Anita, tu Shraddha mein paas hogi, tenu nimbu di tarah nichodiya, cha tera skin cancer theek kita. ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਬੱਤੀ ਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕਰ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ." So something so personal really astonished me and made me realize that he is beyond a guru. He may be sitting here in the garb of a guru, but he is far beyond it.
And with time, of course, he proved that he said, मेरे जान तो बाद देखी संगत मेरी इन्नी बढ़ जानी है कि लाइना लग जाने ने बड़े मंदिर च। And जगह जगह मेरी जोत जलेगी across every continent, country, city. और तेरी सेवा है सत्संग करना. He gave me the best seva, I feel. I remember the first time he, made me stand up. I was shaking like a leaf, in Chota Mandir. He said, कि तू ना सत्संग शेयर कर. So I remember very distinctly, I thought, what is satsang? And what do I share? I was completely at sea, and I stood up, knees were jerking, and I was sweating away, and I thought, what does satsang really mean? So he just says, Sunana Guru di meher, ki meher hui hai. So I remember just saying that Guruji ने मेरा अस्थमा ठीक किया, जय गुरुजी, and बैठ गई मैं. तो गुरुजी हंसने लगे. तो गुरुजी कहते तेनू तो सत्संग भी नहीं सुनाना आंदा. So before he left his body, he said, "तू सत्संग सुनाया कर." So I looked at him and I said, "गुरुजी, लेकिन मुझे तो सुनाना नहीं आता." कहते हुन देखी ना मेरी मेहर है. तो जो सेवा गुरुजी ब्लेस करते हैं, कोई भी सेवा, किसी की भी कोई सेवा, लंगर बनाने की या बाहर जैसे बड़े मंदिर में अशर करते हैं, और that is also gate सेवा या काबा सेवा, ये गुरुजी जब तक ब्लेस नहीं करते वो सेवा, उसमें वो मिठास और वो रस नहीं आता. बट जब गुरुजी ब्लेस कर देते हैं उस सेवा को, तो वो अलग ही रस है. उसी सेवा करते करते हमारे कल्याण होते हैं. आई फील आवर karmic burdens that we carry, karmic account, it starts getting sorted out as we continue doing our seva. So it's so beautiful that Guruji has given each of us seva, and he has redefined the meaning of life. अब हम लॉकडाउन में हैं, but I feel every home is having satsangs now with Guruji, one to one, soul to soul, as he said. So I think it's really extraordinary that in these times where people are saying there's so much uncertainty, I think Guruji has given this certainty of his love, and that's a big one. I think that's so reassuring to have him as our certainty in these uncertain times. So Guruji ki meher bahut tak jati hai. It's very difficult and a challenge, I feel, to encapsulate his blessings in a satsang, because as I said, every moment is actually a satsang with him, and his love knows no bounds. I think he's given us, each one of us, so much that we can't quantify in words or measure them or even explain or describe, because it's experiential. Just being in love with Guruji, loving Guruji, feeling his energy is totally experiential. You have to experience it rather than speak about it. I think it's really remarkable, and I'm eternally grateful to him कि पहले ही बुला लिया गुरुजी ने when I was on my deathbed to prepare us for today. सत्संग होने लगे थे दिल्ली में बहुत सारे, सब जगह, and that was just our preparation for the times that we're living in today, because now we don't feel alone. People are suffering from depression, loneliness, but we have Guruji. We still have our Guru family, our Sangat, which is growing by leaps and bounds everywhere. So thank you, Guruji. I'm going to cut it short today because I think we want other Sangat to also share. So thank you so much, and thank you for giving me this opportunity to share. Jai Guruji. So my journey continued, and of course Guruji ने बोला जब मुझे स्किन कैंसर का ठीक किया, तो कहते हैं फिर तो पिछले साल एस्ट्रोलॉजर को गई सी. ऐसे हाँ जी गुरुजी गई थी. तो कहते हैं फिर उन्हें की क्या सी. मैंने कहा गुरुजी मेरी लाइफ, कहते तेनू मैनू पता है उन्हें क्या सी, तेरी कोई लाइफ नहीं सी. उन्हें बिल्कुल सही किया सी. हुण दस कौन वड्डा, तेरा गुरु या तेरा एस्ट्रोलॉजर. ते इस करके कहना इधर उधर जान दी लोड़ नहीं है, क्योंकि जब तुसी रब को ला जाते हो तो रब ही एस्ट्रोलॉजर, रब ही सब कुछ है. ये सब कुछ जो टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, he is a culmination of everything. Reiki healing, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, because यही सब कुछ है. He is a culmination of all the sciences, of all that was and all that is. So that's why he says surrender कर जाओ, एक ही रखो. प्यार होता है एक से, अनेक से नहीं. तो आप एक से ही फोकस करो. अगर आप गुरुजी पास आते हो तो एक्चुअली कहीं जाने की जरूरत नहीं होती. सिर्फ गुरुजी को एक बार मैंने पूछा कि गुरुजी लाइफ का मीनिंग क्या है.
तो कहते कुछ नहीं, टाइम पास है, अपने कर्म अच्छे कर लो और किसी का दिल नहीं दुखाओ, किसी का चंगा नहीं कर सकते तो किसी का मारा भी ना करो, किसी नो अच्छा बोल नहीं सकते तो बुरा भी ना बोलो। तो गुरुजी का कहना था सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, एंड येट ही यूज्ड टू ऑलवेज से स्टाइलिश बन के आया करो, तैयार हो के आया करो, रब को लान दो तो गंदे कपड़े पाला दो, पार्टी जान दो तो अपने बेस्ट बांध दो। So he taught us really how to live, laugh, how to really find the joy in life. Life is, as we all know, it's of transient nature. Here today, gone tomorrow. It's very uncertain. So is, you know, as I said, it's so beautiful कि गुरुजी ने हमें छोटी छोटी चीजें सिखाई हैं जो actually is a reality. You know, हमें joy मिलता है, कोई संगत भी फोन करती है हमें तो हम बड़े खुश हो जाते हैं कि संगत ने याद किया, तो लगता है गुरुजी ने याद किया। एंड सत्संग्स होते हैं, इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। गुरुजी यूज्ड टू से जैसी संगत वैसी रंगत। तो गुरुजी ने सिखाया ये सब कि अच्छी संगत में बैठो, अच्छा सोचो, एंड ज्ञान भी वही देते हैं। ज्ञान जो भी हमें देते हैं वो बांटने के लिए होता है। अगर हम धन मांगे तो धन को बांटो, लाइक गुरुजी यूज्ड टू से गुप्त पाठ, गुप्त दान, गुप्त सेवा करो। तो और जो, जैसे मैंने एक चीज सीखी है, जब मैं मांगती हूँ कि गुरुजी ज्ञान दो, यू नो, कभी कभी किताबें भी लिखवाते हैं गुरुजी, तो ज्ञान दो, तो वो ज्ञान अपने लिए नहीं होता, वो बांटने के लिए होता है, सब कुछ शेयर करने के लिए होता है। हमारा कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ नाम मांगना है। गुरुजी कहते सब कुछ नीता इत्थे रह जाना, तो असली चीज मंगला है, नाम मंगला है, रब को राम मंगला है, फिर देखी की नजारे हैं, एंड उसी में असली रस है। एंड इट्स सो ट्रू that when we connect to divinity, our whole mindset changes, we change. I feel I don't recognize the woman that I was 20, 25 years ago when I first met Guruji. I feel I'm not the same person. Of course, we're anyway evolving as time goes, but we are evolving faster because Guruji is with us. I think that makes a huge difference. That will, you know, our spiritual evolution speeds up and we start thinking differently. Our priorities change, our perceptions change. Like people when they say कि कितना खराब टाइम है ना ये COVID-19 का, लॉकडाउन है, पर गुरुजी ने हमें इतना पॉजिटिव कर दिया। तो मैं सोचती हूँ बट इट्स अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू स्पेंड टाइम विद योर चिल्ड्रन and to really be at home as much as you can and cook for your family, do whatever you have to, but build that bonding of love with your family. So I think we are so blessed that he's just changed our entire mindset, and that is the biggest blessing I feel for any human being, to be able to see things positively even in a seemingly negative situation. I don't know whether you know, many of you know, but I, after Guruji left, then I was struck with cancer 3 times. I had breast cancer 3 times, 3 tumors, and each time Guruji reduce the intensity and the duration, and that's what he used to say, jadoo tusi aande ho mere kol te 90% ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੱਲਾ ਨਾ, 10% like a prick of a needle, you have to go through it. Now the point is, पता नहीं वो 10% भी obviously बहुत होता है, because हमने कितने जन्म लिए हुए हैं, so many incarnations of karma that we've accumulated, we have to go through it, and we must go through it with a joyful and a cheerful disposition, knowing that Guruji is holding our hand even through that. So ये मानना कि गुरुजी कहीं नहीं गए, गुरुजी यहाँ है, is very important. I feel it's very important for each one of us to introspect and reflect on the fact that these times may be difficult and challenging, but know that his presence, you have to feel his presence by connecting to him. Like you said, मेरे ना connection बनाओ, अपना soul to soul direct connection बनाओ, because हर एक की सोच अलग है, हर एक का एक देखने का नजरिया अलग है, and nothing is right or wrong, but you have to make your connect. For me, he's my father figure. किसी के लिए शिव जी होंगे, किसी के लिए, you know, माता का रूप देखते होंगे, या गुरु नानक जी का रूप. All are right because the lamps are different, but the light is one. एक ही ज्योत है. तो जिस ज्योत को आपने कनेक्ट करना है वो आप पे, you know, it's totally your call. गुरुजी कहते हैं मैं तो सिर्फ भाव देखना, मैं थोड़ा प्यार देखना, और don't be God fearing, be God loving. God fearing थोड़ा सा होना भी पड़ता है, because then you know, we make sure we don't do anything wrong, but more than God fearing, it's important to be God loving. So just keep loving Guruji and know that this too shall pass. ये COVID-19 हमें जगाने आया है. It's come to awaken us
and awaken us to our own truth. I think it's very important to understand that nature has brought us down to our knees so that we can all pray collectively. It's very important to pray. Or like Guruji said, "Paisa bolta hai." Guruji used to say this many times. He said this, "Ke paisa bolta hai." So you know the point is that Guruji used to say कि दिल्ली वाली समझते ने कि रब पैसा है और रब नु भूल ही गए ने. So God has to remind us mortals that bigger than us is divinity. We are very small. We are puppets on a string. So हम भूल जाते हैं that we are such, we're just a speck in that larger light. So it's nature has its way of reminding mankind. And it's a lovely reminder. I hope people do wake up. I hope we all wake up to our truth. And in that awakening, Guruji is supporting us. Guruji is protecting us and he's supporting us. And जो आप ढूंढना चाहोगे वो मिलेगा. Seek and you shall find. But be mindful of what you're seeking. I think time आ गया to seek him. कहते थे रब से रब मांग लो, बाकी सब कुछ मिलना ही मिलना है. तो दुनिया दी चीज़ां ते तुहाडे पिछे दौड़ेगी. पहले असली चीज ना मांग लो, तो भगवान मांग लो, और भगवान हमारे साथ है तो सब कुछ साथ है. रब है तो सब है. तो जय गुरु जी. है तो बहुत सत्संग, आपको पता ही है सबको कि सत्संग की तो दिस इज जस्ट वन लीफ आउट ऑफ द बुक एंड आई कैन नॉट थैंक हिम इनफ. आई मीन वो कहते हैं ना स्वासा दी माला ना सिमरा तेरा नाम, वो भी इनफ नहीं है एक्चुअली. It's like thanks also is such a small word because शुक्राना हर पल के लिए, शुक्राना इस मोमेंट के लिए भी, कोविड-19 के लिए भी, बिकॉज इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है अपने बारे में. तो आई थिंक इट्स रियली ब्यूटीफुल. वी वेरी ब्लेस्ड कि हमें गुरुजी ने हमारे साथ इंट्रोड्यूस कर दिया. वी हैव बीन इंट्रोड्यूस टू आवर ट्रू सेल्व्स, ट्रू नेचर, and हमारा real test of character, test of spirituality is now. So stay connected to him and keep loving him. Jai Guruji. So next I request Archana Srivastava aunty. So Archana aunty please आए और सत्संग शेयर करें. जय गुरुजी, प्यारी संगत जी. Am I audible enough? Can you all hear me? Thank you so much. शुक्राना गुरुजी. कोटि कोटि प्रणाम आपके चरण कमलों में, आपके लोटस फीट में हमेशा वही जगह दें सारी संगत को. आपके चरणों से जुड़े रहना ये सबसे बड़ी खुशकिस्मती है. वो भी आपकी ग्रेस है, आपकी मेहर है कि आप जोड़ के रखते हैं. यू कनेक्ट अस ऑल, यू कनेक्ट द डॉट्स. वी आर नथिंग. हम कुछ नहीं है, आप ही सब कुछ हैं. सो थैंक यू गुरुजी फॉर दैट. थैंक यू गुरुजी फॉर दीस सत्संग्स. इतने प्यारे, इतने अच्छे, दिल से निकले हुए सत्संग, एकदम जो एसेंस ऑफ गुरुजी's लव टीचिंग्स, वो जो है इन सत्संग्स के माध्यम से बिल्कुल सीधे दिल से दिल तक ऐसे लगता है. सो शुक्राना गुरुजी फॉर दैट. सो बैक इन दोस डेज 2003 जब हमने जाना शुरू किया तो मुझे लगता था, मैं थोड़ा प्रोफेशन वाइज भी ऐसी थी, तो मुझे बहुत एनालिसिस करने में मजा आता था हर चीज का. मैं जाती थी तो मैं देखती थी पीपल कम एंड दे परसीव गुरुजी एज पर देयर ओन परसेप्शन, उनके अपने लेवल के हिसाब से, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, और जैसे गुरुजी कराना चाहें. लाइक किसी के लिए वो फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड थे, किसी के लिए वो पेरेंट थे, किसी के लिए पहले दिन से वो महाशिव थे. सो गुरुजी सबके लिए कुछ ना कुछ बहुत ही स्पेशल आपके लिए है. बहुत ही आपके साथ उनका एक बहुत प्यारा सा एक स्पेशल कनेक्शन होता है. सो गुरुजी लव्स दैट आल्सो. किसी भी फॉर्म में बांधने की जरूरत भी नहीं है गुरुजी को. एंड व्हेन गुरुजी calls you in his fold, he takes care of all your needs. See, there is a need hierarchy, Maslow's need hierarchy, which says कि पहले हमारे सारे जो basic needs होते हैं like food and hunger, and then comes the sense of security, psychological well-being, self-esteem needs and all that. Then comes the top of the need, that's self-actualization or self-realization. Now Guruji, when he takes care of all your needs. जो भी आपकी नीड्स है, चाहे वो बेसिक नीड्स हो, चाहे आपकी बिल्कुल सुप्रीम नीड हो. तो गुरुजी सिंप्लीफाइड एवरीथिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल
So even in new age spirituality, like a lot of mumbo jumbo is going on, Kundalini yoga, chakra balancing, aura healing, name it and it's there in the market. But at the same time, Guruji के पास आप आ गए हो, तो Guruji will take care of all your needs. चाहे वो आपकी physical needs है, emotional needs है, psychological needs है, even materialistic needs. Guruji also said there's no like, don't shy away from them. ये life Guruji ने दी है enjoy करने के लिए. गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि गुरुजी तो खुद रसिक वैरागी, उन्होंने ये कभी नहीं कहा, बट ये कहा हिसाब नाल, एवरीथिंग हिसाब नाल. सो गुरुजी ने एक बात और बोली, जगह जगह अकाउंट मत खोलो, हर जगह जा जाके इफ एंड बट, ट्राई, लेट्स ट्राई दिस, लेट्स ट्राई दैट, ये भी करने को मना किया. जगह जगह अकाउंट मत खोलो, बिकॉज देयर इज नो नीड. सी आई एम नॉट क्वेश्चनिंग एनीवन्स ऑथेंटिसिटी और एनीथिंग, बट एट द सेम टाइम एक बार गुरुजी के पास आ गए, एको नाम ध्याय मन मेरे, तो सब कुछ उन्हीं में है. फिर जा जाके जगह जगह ट्राई करने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज देयर इज नो नीड. गुरुजी से हमारे बढ़ के कौन है? ही इज द सुप्रीम, ही इज द पावर हाउस ऑफ वट एवर एनर्जी यू आर लुकिंग फॉर, वट एवर हीलिंग और ब्लेसिंग यू आर आस्किंग फॉर. गुरुजी के पास एक बार आ गए, ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. 10 साल पहले जब अमेरिका गुरुजी ने भेजा, उसके कुछ दिनों पहले मुझसे गुरुजी ने बोला था बड़े मंदिर आई, पूरी संगत भरी हुई थी एम्पायर स्टेट में. जब लंगर होता था तो लंगर में आमने सामने बैठते थे और बीच का रास्ता खाली रहता था, जिससे कि जो फर्स्ट लॉट है वो बाहर जाके हाथ धो के पानी पी के जल प्रसाद अंदर आके मत्था टेकता था. उस समय जो वातावरण वहां पे होता था, द एटमॉस्फेयर यूज्ड टू चार्ज अप सो मच, सो डिफरेंटली, क्योंकि उसके पहले बिल्कुल डिसिप्लिन वाला माहौल. सी मेडिटेशन ऑल्सो, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ कॉमन पर्सन टू मेडिटेट फॉर इवन 1 आवर, 1 घंटे के लिए भी. लेकिन गुरुजी ने इतना सिंप्लीफाई कर दिया कि वहां जब आप बैठ के वो शब्द सुनते थे ध्यान लगा के, वो तो मेडिटेशन ही था. वो जब लाउड वॉल्यूम अंकल, जब डीजे अंकल लाउड करके वॉल्यूम बजाते थे शब्द, आपका ध्यान कहीं इधर उधर जाता ही नहीं था. अगर आप ब्रेन की ईईजी करें तो देखेंगे द सेम अल्फा वेव पैटर्न यू विल फाइंड व्हाइल यू आर लिसनिंग टू शब्द ऑल्सो. इट्स नॉट कि आप सिर्फ मेडिटेट करें तब. तो जब लंगर प्रसाद के समय संगत आके मत्था टेकती थी, मैं भी लाइन में थी. गुरुजी की एक बड़ी प्यारी आदत थी कि वो जो है अपने जब गद्दी पे रहते थे और संगत लाइन में होती थी, तो वो अचानक से नजरें ऊपर करके देखते थे, और आप चाहे 5th और 6th नंबर पे हो लाइन में, वो आपको ऐसे देख लेते थे. और बहुत इनका निहाल कर देने वाला वो जेस्चर होता था. उसी क्षण में आपको समझ में आ जाता था कि गुरुजी ने आपको एक्नॉलेज कर लिया है, लाइक ही नोज यू आर हियर एंड ही नोज एवरीथिंग अबाउट यू. और उसके पहले गुरुजी कभी भी जो एकदम सामने होता था उसको नहीं देखते थे, जो पीछे खड़ा होता था उसको देखते थे. तो उस समय मैं लाइन में एंड लग के मत्था टेकने वाली थी. जैसे मैं गई, गुरुजी ने धीरे से कहा बड़े मंदिर आई. नाउ गुरुजी उसके पहले बड़े मंदिर स्पेसिफिकली तभी बुलाते थे जब कोई बड़ा फंक्शन होता था. 5 फंक्शन जो साल में होते थे, गुरुजी का बर्थडे, महाशिवरात्रि, गुरु पूर्णिमा, बैसाखी एंड न्यू ईयर. एंड विद गुरुजी's ग्रेस हम सारे फंक्शंस में गए हैं. गुरुजी ने बुलाया. उस समय जब उन्होंने बोला तो मुझे लगा अभी तो कोई बड़ा फंक्शन है नहीं, बैसाखी अभी होके गया है, 2007 की मैं बात बता रही हूँ. तो अब कौन सा फंक्शन? गुरुजी क्या बर्थडे के लिए अभी से बोल रहे हैं? बट एनीवे, गुरुजी से तो कभी भी दोबारा पूछ थोड़ी सकते थे गुरुजी क्या बोला आपने, ऐसे तो नहीं बोल सकते. तो ठीक है, मैं वापस आ गई. कुछ दिनों बाद गुरुजी ने समाधि ले ली. Guess what? Then whatever happened, मैंने शेयर किया है, हम यहाँ आ गए 10 साल पहले. Every year गुरुजी kept his promise. हर साल उनके बर्थडे पे गुरुजी यहाँ से हमें बुलाते हैं, अमेरिका से इंडिया, और हम जाते हैं क्योंकि गुरुजी ने वो ब्लेस किया, गुरुजी ने बुलाया. हर साल उनके बर्थडे पे वो बुलाते हैं. और ऐसे मतलब that's what I'm saying. There is no shame in saying कि गुरुजी इतना ऐश कराते हुए ले जाते हैं बच्चों को. उनको पता है हमारे बच्चे छोटे हैं, बिजनेस क्लास में, फर्स्ट क्लास में वहां जाते हैं, तो देयर इज अ फ्लीट ऑफ मर्सिडीज एंड BMW वेटिंग फॉर अस एट द एयरपोर्ट. ये किसने किया? ये गुरुजी ने किया. आई एम नॉट फीलिंग एनी एम्बैरेसमेंट इन सेइंग दैट, क्योंकि ये गुरुजी ने किया, ये उनकी मेहर है. उसके बाद भी पूरा इंडिया ट्रिप हमारा इतना अच्छे से, एंड ऑफ कोर्स बड़े मंदिर. तो बड़े मंदिर में बर्थडे पे बहुत संगत होती है, सबको पता है. somehow and I never want a fast pass फॉर बड़े मंदिर. मुझे वहां लाइन में खड़ा होना इतना अच्छा लगता है, चाहे आप दिन भर खड़ा रखो, मुझे लगता है दिस इज माई टाइम विद माई गुरुजी.
क्योंकि हम डिज्नीलैंड में लाइन में जाके 2 घंटे खड़े हो सकते हैं फॉर अ राइड, और यहाँ पे गुरुजी के सामने। तो वो गुरुजी ने खुद भी बोला कि जब आप एक कदम बड़े मंदिर की तरफ बढ़ाते हो, आपको हजारों अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। और जिस टाइम पे आप खड़े हो गुरुजी के मंदिर में दर्शन के लिए, दैट्स आई फील सो नॉस्टैल्जिक एंड इमोशनल। मुझे एक एक बात याद आती है गुरुजी की कि हाँ गुरुजी आपने सही बोला था, लाइनें लगेंगी। यहाँ तो हम गाड़ी एकदम गेट के सामने पार्क करते थे, और यहाँ पे आज इतनी लंबी लाइन में 3 घंटे खड़े हैं। बट दैट्स अंदर लाइक I have no complaints about that. That's a blessing. तो इस बार क्या हुआ था, लास्ट में जब गई थी, बहुत छोटा सा मैं बता रही हूँ कैसे गुरुजी अभी तक थॉट पढ़ते हैं। जब मेरी आदत थी कि मैं एम्पायर स्टेट हो चाहे बड़े मंदिर, मैं मन में गुरुजी से बहुत बातें करती रहती थी, बहुत, कि अच्छा गुरुजी अगर ऐसा है तो ऐसा है, ऐसे करके। तो मैं गई और बहुत ऑफकोर्स बहुत संगत थी, बहुत भीड़ थी। मैं बैठी थी जहाँ वेटिंग एरिया था, और मैंने इधर उधर नजर डाली। मैंने कहा गुरुजी लाखों की संगत, इसमें से एक भी ऐसा नहीं जिसको मैं जानती हूँ या जो मुझे जानता हो, क्योंकि वो तो अलग, उस समय भी हम इतना इंटरेक्शन नहीं करते थे, बट स्टिल अभी तो सब नए हैं। तो इफ यू if anyone is there who will take my name, who will call me by my name, I will understand it's you. And इतना कहके मैं भूल भी गई। उसके बाद लाइन में लगे, समाधि मंदिर में दर्शन के लिए जब गए, समाधि पे मैंने जैसे ही अंदर मथा टेका, somebody whispered in my ears, आज तक मेरे goosebumps होते हैं, अर्चना। Then I said, okay, मुझे धोखा हुआ क्या? मैंने देखा फिर से अर्चना, मैंने देखा, मैंने गर्दन उठाई और देखा मेरी डालस की एक फ्रेंड, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था कि वो भी बड़े मंदिर आई हुई है, वो समाधि सेवा पे थी, and she whispered my name. ये गुरुजी थे who reassured me, who just reinforced my faith कि yes, I'm here and I listen to whatever you think and feel till date. ये गुरुजी हैं। तो ये बहुत ही like this cannot be explained. ये गुरुजी ऐसे करते हैं। सेकेंड थिंग, जब हम गुरुजी के पास जाते थे, जो भी बुकिश नॉलेज है, गुरुजी ने कहा किताबी पाठ नहीं होता, जो बुकिश नॉलेज है, थियरीज है, डिफरेंट स्पिरिचुअल थेरेटिकल नॉलेज है, गुरुजी के पास जाके वो सब बेकार हो जाती है, क्योंकि गुरुजी सब कुछ प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। आप जो एसेंस ऑफ ऑल द रिलीजियस बुक्स हैं, जैसे गीता का निष्काम कर्म योग है, गुरुजी के यहाँ सारे प्रोफेशनल्स आते थे। इवन अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप अपने घर में फैमिली बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, इवन दैट्स योर ड्यूटी। अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से करिए, आप कोई भी हो। आर्मी प्रोफेशनल्स को गुरुजी ने इतना ब्लेस किया इसीलिए क्योंकि वो अपनी ड्यूटी इतनी अच्छी तरह करते हैं। तो आप अगर निष्काम कर्म भाव से जो गीता का सार है, एसेंस है, वो गुरुजी ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। रिलीजन का कोई गुरुजी के यहाँ पे, गुरुजी इज वे अबव एंड बियॉन्ड एनी रिलीजन। तो रिलीजियस उसमें दायरे में बांध के भी नहीं रख सकते गुरुजी को हम कभी। क्रिश्चियन आंटी को मैंने गुरुजी के सामने दंड प्रणाम करते देखा है, मुस्लिम संगत आती थी गुरुजी के यहाँ पे, तो हम कभी उनको इस संकीर्ण दायरे में बांध के नहीं रख सकते कि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन या सेक्ट के हैं। गुरुजी तो सबके हैं, ही इज यूनिवर्सल। ऑल्सो जब भी श्री गुरुजी के यहाँ जब जाते थे, मुझे लंगर प्रसाद बड़ा याद आता है, क्योंकि वो बड़ा फन टाइम होता था हमारे लिए। एट द सेम टाइम दैट वाज फूड फॉर द सोल, आपकी सारी नीड्स उससे गुरुजी पूरा करते थे, और बहुत मजा आता था। गाने बड़े अच्छे चलते थे बाद में। तो आज भी जब वो रीमिक्स हो के गाने आते हैं ना, सौदा खरा खरा है, जिन्हें मेरा दिल लुटिया, तो मुझे गुरुजी का दरबार याद आने लगता है। तो जब संगत आमने सामने बैठती थी, 4 लोग, और बीच में से रास्ता रहता था खाली संगत के मत्था टेकने के लिए। तो व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट इन माय फर्स्ट ट्राइमेस्टर, आई वाज सिवियरली लाइक आई हैड सिवियर नॉशिया। तो मैं इतना ज्यादा मुझे नॉशिया रहता था कि अगर बगल के घर में भी कोई मसाला फ्राई कर रहा है तो आई यूज्ड टू थ्रो अप, और मैं दिन भर कुछ नहीं खाती थी इसी वजह से, बिकॉज आई कुड नॉट स्वॉलो वन बाइट। गुरुजी के यहाँ जाते ही पहले तो इतना अच्छा चाय प्रसाद आता था, उसके बाद जब बैठाल के गुरुजी लंगर खिलाते थे ना, बिल्कुल भी कभी मुझे नहीं लगता था कि मुझे नौशिया हो रहा है या सिकनेस हो रही है, आई वांट टू थ्रो अप, नथिंग। जबकि इतना स्पाइसी फूड होता था, इतना अच्छा फ्लेवरफुल लंगर होता था। तो गुरुजी जानते हैं, एंड समटाइम्स उसी 2 रोटी प्रसाद और आ जाता था, और बाद में भी लड्डू या बर्फी प्रसाद आ जाता था, बिकॉज गुरुजी न्यू व्हाट आई नीड एट दैट टाइम। एवरी टाइम व्हाटएवर योर नीड्स आर, ही नोज वेरी वेल। सो सब उनके हाथ में छोड़िए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ये गुरुजी ने सिखाया। सो थैंक यू। आई थिंक दिस इज
for today, and thank you very much. Thank you. Shukrana, Guruji.